position with 104.20 points, and Mangalore University on the 4th position with 103.25 points. 4 more universities to be performing today, and the top 2, in the morning session, it's going to be Barkatullah University to take on the opponent Vikrama University. What are your expectations from this encounter, Prashant? How do you see these players coming up at this big stage and performing? And not just performing, where people are not watching you. In fact, a lot of people throughout the nation are witnessing what you're doing here in the city of Lucknow. नवाबों के शहर में आप जो कर रहे हैं, वो पूरे देश में देखा जा रहा है. And you never know, आप इस खेल के कब नवाब बन जाएं. A lot of questions to be asked, a lot of answers to be given. But yes, it is a young broadcasted sport which is literally from the grassroots of the country. Some photographs, happy moments, moments to be cheered. The technical team with the team players getting themselves clicked. Right after the official photograph, it's time for live action within some time. खेल के प्रारंभ होने से पहले की जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जा रही हैं. वॉलंटियर्स से मुखातिब होते हुए जो ऑफिशियल्स हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, वॉलंटियर्स के साथ में आप देख रहे हैं. जज पैनल है पूरी जो इस प्रतियोगिता को कंडक्ट करने में अपनी भूमिका अदा करेगी. कुल मिलाकर 9 मेंबर्स रहा करते हैं, 6 जजेस और 3 उनके साथ बतौर स्कोरर, टाइम कीपर और लाइनमैन अपनी जवाबदारी निभाया करते हैं. मलखम में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की जो टीम है वो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है. प्रणीत, सागर, हालांकि वो नाम कटा हुआ है सागर. सागर के अलावा तरुण कुशवाहा, उत्कर्ष पांडे, शुभम नामदेव और राहुल पाल. ये 6 नाम हैं जो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की तरफ से प्रदर्शन करेंगे. बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी का ये दल. And facing the Barkatullah University is the opponent team, that is Vikrama University. And just to give a casual reminder to all our viewers, it's never going to be one university up against another, because they will be just performing once, and the university which gets maximum number of score will be declared as the winner. So their opponent, as far as this encounter is concerned, it's going to be Vikrama University. Still waiting for the graphics to be fired on your screen, but it's going to be Kundan, Vishnesh, Rajveer, Sachin, Deepak, Hemant. These are the 6 competitors who will be competing from the Vikrama University. A big day for Madhya Pradesh. At this level, the real talent that Madhya Pradesh has got is getting an opportunity to be broadcasted at the national television. It really makes me feel so proud to be in the comm box. तो आज का दिन, सुबह का सत्र मध्य प्रदेश के मलखंब के खिलाड़ियों के नाम रहेगा. कुछ दर्शक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मलखंब से जुड़े व्यक्तित्व हैं. And as we saw yesterday, the pole is being powdered. It has already been applied with that oil so that the players can get some sort of grip on it. But the only question arises that how about landing? We have seen a lot of players jumping from that pole, couldn't convert it in a decent stuff. Can the players from Madhya Pradesh prove it, that they have got that potential to go with the perfect landing stuff? Well, to begin the proceeding for this big pole, the pole Malcolm, it's going to be Barkatullah University. And if I'm not wrong, Sagar will be taking in charge to begin it up for the Barkatullah University. Sagar is in action. He's on the pole. Just trying to climb over it. Holding the pole top with his palms. Trying to balance the body. This is the asana we have been witnessing from a long time.
I mean, he's lost his balance, but somehow keeping the body straight away there for a fraction of a second, and this was not to deviate the decision of the judges. He literally fall down, he was literally falling down, somehow managed to balance the body weight and keeping himself straight alive on that pole. Remember, what all you get is 60 to 90 seconds. You need to perform minimum a specific set of elements. Now he's getting some speed, he's getting speedy right now. But it seems that the performance is not effortless for me. He's fumbling few of the times. Sometimes it feels as if he's coming down, he's falling down out of that pole. Stretching the body, making a balance. This was fine enough, although I couldn't see the facial expressions. That's a different story altogether. Balancing the body with the thigh vertically downwards, moves up once again with that right leg followed by the left. It's time for the somersault. Goes down and loses the balance right after putting both the foots down. So that's the only story. Right after keeping those feet down, he disbalanced himself. And I believe it was a weak performance to start with, Prashant. शुरुआत है और उम्मीद करते हैं बाकी खिलाड़ी और बेहतर करेंगे। किस तरीके से प्रदर्शन किया सागर, आपको ध्यान होगा सागर जो मुंबई के हैं वो बेस्ट स्कोरर हैं अभी तक प्रतियोगिता में। 8.85 उनके पास पॉइंट्स हैं, लेकिन बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के सागर ने क्या किया, कितना प्रभावित किया जजेस को, ये आने वाला समय बताएगा। बहुत जल्दी नंबर्स हमारे सामने होंगे जो आप तक पहुंचाएंगे। On the other hand, it's the Vikrama University who on that rope Malcolm. Hemant, the competitor from the Vikrama University, is on the rope right now. The rules are very same. You need to stay on the rope for 60 to 90 seconds and you need to perform a specific set. And in rope Malcolm, you have to do 18 elements. That's the maximum of all the 3 apparatus that you have to perform in the Malcolm. Balancing his body, sitting, holding that position for less than 2 seconds. And you need to hold it for 2 seconds at least to get the maximum of the scorecard. Hemant, who looks fine, who looks stable, just hanging up downward with that rope. And a decent sort of a start as far as Vikrama University is concerned. The landing was fine enough, where you always look that your body never gets disbalanced. If it does, it's never going to be easy for you. Performances, that's what we have seen, that's what we are witnessing. And in case if you have missed anything from the performance of Hemant, we are bringing a package of highlights for you, where Hemant was balancing his body, tying a knot towards the ankle area, and then jumping decently. Although he disbalanced himself, but it was not a proper disbalance, I should say. Reason being that when you land on that mat, as it's puffy, it's never going to be easy for you to maintain that balance, where things can change. The girl competitors will be in action tomorrow. Right now she's just swiping up the rope so that there is no sweat part remaining. On the other hand, in the pole, Barkatullah University will be in action. Rahul is going to be the competitor, will be competing up in the pole Malkhamba. On the other hand, the pole has been cleaned, the powder has been applied, and they're preparing for all the elements of Rahul. This is good teamwork. It literally is a great teamwork. When you have people around you who are supportive, it always shows your respect. So Vikrama University, Kundan, Vishnesh, Rajveer, Sachin, Deepak and Hemant. These are the 6 competitors. They'll be competing. But just a casual reminder to all our viewers that the top 5 scores are being calculated, are being added, and then
the university has been given the final result with. On the other hand, the player who has performed comparatively weak is not been into the consideration, is never been considered. Yesterday we have seen a university just competing with 5 players. If I'm not wrong, that was the Mangalore University. And that could be the only reason that they stood on the 4th position. On the last position out of all the 4, university doing it. So on the rope, Malcolm. This is Vishnesh, who just wanted to check it. It was for a warm-up. Sometimes it gets a bit confusing. All of a sudden, once when the player goes up on the rope, it seems as if he has started, because simultaneously we are covering 2 broadcasts. One is from the rope, Malcolm. Second one is from the pole, Malcolm. Some serious discussion going on. These are young guys, but very serious about what they are doing. He is counting the number of total elements that he'll be performing. Minimum you have to do 18 elements. And then you can add on if you have some time. So in the rope, Malcolm, he's been asked to hold on for that rope. Vishnesh from Vikrama University, Madhya Pradesh, has always been a factory of Malcolm players, that's what I should say. Mr. Yatin is sitting second to the right of the screen. But now, towards the pole, the guy who is charging from the Barkatullah University is Rahul. He's applying his powder. Both the competitors are having their eye towards each other. Who will be starting it? Whether it's going to be Vishnesh or it's going to be Rahul. In fact, I am also waiting for the same thing. Who starts first? He's got a kneecap on his left knee. Then he has got a crab bandage being tied towards his ankle. So yes, from these visuals, I can see that this is going to be pole, Malcolm, first, which also means that this is going to be Rahul, who has begun proceedings in style. Goes for that back bend body asana. Vertically still, stable, calm, composed, slowly goes up. Balancing the body, comes down within 2 seconds. And then gives some sort of jerk to his body. Holds up that pole, goes down. What a perfect balance it is. Making an angle of 180 degree with that pole. And then transforming it to the 90 degree. That is the horizontal angle. Turn and twist asana. He's turning, he's twisting, he's rotating his leg. Goes upside down. Turns all the angles around. Holds up the position. Have they started the rope Malcolm out as well? Yes, they have. Here the performance of Rahul goes on in the pole, Malcolm. On the other hand, the rope, Malcolm, has also begun. Vishnesh is in action over there. Execution is good. He's finding it difficult. He tried twice. Then he thought, okay, he was not able to take that position. He left it. Holds on, standing with one leg. Loses the balance, or was that a somersault? He loses it and thought to finish it in style by giving some sort of illusion to the judges, as if he's attempting some of the elements. But he was not able to do that. And not of the greatest of the endings. So this is the jump. Although his body got disbalanced, then he went away for that somersault, couldn't land decently. Was having that smile on the face. He was knowing that he didn't finish it in style. Although the rope, Malcolm, is going on. On the rope right now, this is Vishnesh, who's hanging. He has not got much of the time remaining.
Within a fraction of second, he may come down. Let's wait for how he finishes things off for his university. Bands the body, hangs downwards, gives that potential and lands decently. Although each and every competitor after landing just loses some sort of balance, but that's okay. That's completely fine. So this was the performance of Vishnesh, who was on the rope. Just went for that note towards the ankle area, holds the other toe with his hand and bands the body beautifully. This means how flexible the body of the gymnast and the Malcolm players is. Earlier, gymnastic used to be having Malcolm as an integral part of that, and then in 80s, Malcolm got its independent value as a different game, a different sport. Then a lot of opportunities being provided to these players, not just at state level, also at national level. Few international players are also performing. Remember, in the afternoon session, it's going to be Deepak, the current world champion in Malcolm, will be in action. Earlier used to be a part of University of Mumbai, and if I'm not wrong, he'll be playing for the Pune University in the afternoon session. The volunteers waiting and witnessing the encounter. On the other hand, the upcoming player, that is Utkarsh, is getting some powder applied towards his body. All the joint areas, they generally apply the powder, reason being that they have to hold the pole with those joint areas. Of course, any body part which is rigid, which cannot be moved, you can't hold that pole with it. So you need to look for the joints to get a better grip over that pole. The third competitor from the Barkatullah University. Two competitors from Vikrama University have also performed. Vishnesh has also completed his performance. Hemant is done and dusted with his performance. So in total, we have seen 4 performances. Taking his time is Utkarsh. Goes towards his area. The starting point. On that side screen, I could see those score lines. University of Mumbai at the top position right now. Uses its feet to start the proceeding. Gets in touch, gets in intact with that pole. Using the toe area to balance the body. This is forward body band asana. There are different categories, and this was phenomenal. All of a sudden jumping downwards and then holding the pole with the help of your thigh. Balancing the grip. Goes upside down, rotates himself as if he's a pendulum, and so fluently, effortlessly, he's slaying from right to left, from left to right, upside down, downways up, giving those jerks. This is something different. This is originality of this guy. He's got some pace, he's got some speed, he's quick, and his balance is fine out as well. And the gestures that he has got whenever he is performing the exercise literally shows that this guy has got some different potential. So Utkarsh, the third competitor from Barkatullah University, has impressed me at an individual level a lot if you compare it with Rahul and Sagar, who performed earlier. But how about the final finishing? How about the climax of this movie? Can he finish it decently? That's the only question, because landing has not been up to the mark for any of the universities. Here we go then, the final time. Loses the balance. Missed opportunity. Okay, the landing was fine enough, but this will give no points to Utkarsh. Final 3 or 4% of your exercises were remaining, and what you did, you couldn't finish it.
And that's what pressure is all about. This is how it started. Holds the pole, goes up, looks to get that grip, upside down, holding it with the thigh. Backward turn, body position. And on the rope, once again from the Vikrama University, the action continues with Sachin in action. Goes for that grip, holds it, twists the rope. Somehow gets it, ankle over there. Backward bend positioning, hanging downward. Finds some momentum, goes up. Okay, unfolds the rope once, gets back downwards. This is good strategy. Using the rope is very, very important. If you are using the entire length of the rope, you may impress the judges a lot. Because that's the prop. That's what you can say. And if you are using your prop decently, if you are using all the equipments, whatever you got, things are going to go in your favor. The Titanic pause goes down, loses the balance, will have to find the rope once again. The first competitor, oh, it was staring towards me. I'm so close, literally sitting so close towards the rope arena that even if I get a bit loud, the voice goes towards the ears of the competitors who are performing, and it may sometimes distract their concentration. That's the only reason whenever it comes to that rope area, I used to lower my voice. I literally do that for the sake of the concentration of the players. Although the performance of Sachin, that was the landing. So Prashant, these competitors are trying their level best. But how do you see the performances going on as far as the Barkatullah University and the Vikrama University are concerned? जी हाँ, मध्य प्रदेश के दो दल, मध्य प्रदेश के दरअसल 12 ये खिलाड़ी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं और महत्वपूर्ण है आज सुबह का सत्र यूँ कहे कि मध्य प्रदेश के नाम रहा है मल्लखंब मुकाबलों में। और एक बात और सत्य है जिसका जिक्र आपने भी किया था, ये मुकाबले दरअसल आपस में मैच के तौर पर नहीं खेले जाते हैं, अपने आप से मुकाबला होता है, अपने को बैटर से बैटर करना है, ये कोशिश की जाती है और ये जवाबदारी भी रहा करती है हर एक खिलाड़ी की। फिलहाल पोल मलखम्ब पर हमारी नज़रें हैं। पोल मलखम्ब पर दरअसल बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की टीम है। जो कल के जो स्कोर रहे हैं वो आप देख पा रहे हैं। कल जो महत्वपूर्ण प्रदर्शन रहा था वो देखने योग्य था। डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई की टीम टॉप पर रही। अगर 4 टीमों का आकलन किया जाए तो कौन सी 4 टीमें किस पोजीशन पर रही हैं? मुंबई ने टॉप किया, 119.80 उनके मार्क्स रहे, नंबर्स रहे। 119.80 अंकों के साथ पहले स्थान पर मुंबई है। दूसरे स्थान की बात की जाए तो वेल्स यूनिवर्सिटी, चेन्नई की टीम 111 अंकों के साथ, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पोल मलखम्ब के लिए शुभम जो अपने परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं। तीसरे स्थान पर जो टीम रही है वो है सन गाडगे विश्वविद्यालय अमरावती की टीम 104 अंकों के साथ, जबकि 103.25 अंकों के साथ मैंगलोर विश्वविद्यालय कर्नाटक का जो दल रहा वो चौथे स्थान पर रहा। आज 4 टीमें रहेंगी। 2 टीमें शुरुआत में पहले चरण में आ रहे हैं शुभम अपने परफॉर्मेंस के लिए। शुभम नामदेव भोपाल के ही रहने वाले हैं, 24 वर्षीय। देखना है किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं। साधारण परिवार से आते हैं, पिता प्राइवेट जॉब किया करते हैं। महज 13 साल की आयु में शुभम ने मलखम्ब खेल प्रारंभ किया। मलखम्ब को देखा, मलखम्ब को पसंद किया और फाइनली उन्होंने ज्वाइन किया। भारत सिंह बांदेवाल उनके कोच हैं। इधर रोप मलखम्ब की बात कर लें, यहां पर दरअसल अटेम्प्ट प्रारंभ कर दिया है।
हेमंत हैं रोप मलखम पर। रोप मलखम अपने आप में एक ऐसी विधा जहां पर आपके पास चुनौतियां ज़्यादा रहा करती हैं। एक छोटी सी रस्सी के साथ आपको ऊपर आना होता है और यहीं पर आपको 18 एलिमेंट्स को अपनाना होता है, कम से कम 90 सेकंड में 18 एलिमेंट्स। तो ये अपने आप में बड़ी चुनौती रहा करती है। में खेलना शुरू किया, अभी सफ़र काफ़ी बाकी है, देश के लिए खेलना चाहते हैं। अलग अलग आसन अपनाते हुए 60 सेकंड शुरुआती जो रहा करते हैं। लैंडिंग प्रॉपरली नहीं कर पाए, शायद समय का ध्यान उनको रहा नहीं, निराश हैं हेमंत डोडरिया। शुरुआत क्लाइंबिंग देखिए किस तरीके से रही थी। हम कोशिश किया करते हैं कि आपको दोबारा एक हाईलाइट पैकेज के जरिए उनकी पूरी गतिविधि बताएं, किस तरीके से उन्होंने बजरंग पकड़ और उसके बाद फाइनली लैंड किया। उतना प्रभावित नहीं किया दर्शकों को भी, और शायद जज भी यही कहेंगे। अब दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं पोल मलखम की तरफ। पोल मलखम जैसा कि आपको हमने बताया था, ये चौथा कंटेंटर होगा, 3 तो हो गए थे ना। वहां क्या था, ये वाला कौन सा था? शुभम थोड़ी देर पहले तैयारी कर रहे थे। यार इस समय मत आया करो, कमेंट करो। पोल मलखम पर शुरुआती जब खिलाड़ी अपनी शुरुआत किया करता है तब स्पीड कहीं ज्यादा दिखाई दिया करती है, और जाहिर सी बात है तेजी आपको लानी ही होगी जज को प्रभावित करने के लिए। टॉप पर बहुत तेजी के साथ अपने आप को दूसरी एक्टिविटी में झोंका करते हैं, और यही ताकत और यही खूबी हुआ करती है, इस तरीके से बैलेंस बनाना। पोल में दरअसल सबसे ज्यादा इस्तेमाल थाइस का हुआ करता है, जांघों की ताकत जो रहा करती है वो दिखाई देती है। चकोर आसन की तरफ बढ़ते हुए, ये है चकोर आसन, जिसको हम अगर योगा का ज्ञान रखते हैं जो दर्शक भली भांति जानते होंगे। और अब लेग्स कॉम्बिनेशन निरंतर आप अपनी एक्टिविटी को अपनाएं। दरअसल अगर पोल मलखम की बात करें, यहां पर 16 एलिमेंट्स अपनाने होते हैं 90 सेकंड में। कभी जिम्नास्टिक का हिस्सा रहा 60 के दशक में, लेकिन 80 में फेडरेशन तैयार हुआ। ये फाइनल लैंडिंग हालांकि बहुत ज्यादा उत्साहित तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं हुई, थोड़ा इजी फिनिशिंग किया। डिफरेंट करने की कोशिश, और जब आप डिफरेंट किया करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ओरिजिनलिटी आया करती है और वो प्रभावित किया करती है। ह्यूमन फ्लैग बनाया करते हैं 90 डिग्री के एंगल में, वो भी अविश्वसनीय सा लगा करता है। तो शुभम ने अपना परफॉर्मेंस खत्म किया। अब रोप मलखम की तरफ बढ़ते हैं। रोप मलखम में राजवीर रोप पर परफॉर्म करते हुए पांचवें कंटेंडर हैं दरअसल। तमाम सारी मुश्किलों को साधना रोप मलखम में चुनौती रहा करती है। शरीर तो शरीर महसूस ही नहीं होता, इतना लचीलापन जो देखते हैं वो अभिभूत रहा करते हैं। राजवीर उज्जैन के रहने वाले हैं, 25 वर्षीय, देश के लिए मेडल जीतना उनका सपना है, और मेडल कैसे जीते जाते हैं वो उसका लगातार अभ्यास कर रहे हैं। द्रोणाचार्य अवार्डी योगेश मालवीय उनके कोच हैं। महज 9 साल की उम्र में राजवीर ने खेलना प्रारंभ किया था मलखम। क्या तेजी, क्या गति, ये अद्भुत है। और उनकी स्पीड की सराहना सभी ने की, और लैंडिंग में दिक्कत जरूर आई लेकिन कोशिश उनकी बहुत अच्छी थी।
होनहार हैं राजवीर, पिता उनके नहीं हैं, लेकिन माता लगातार उनका संरक्षण किया करती हैं और उनको प्रेरित किया करती हैं। राजवीर का परफॉर्मेंस एक बार फिर आप देखिए इस हाईलाइट पैकेज के जरिए। शुरुआत उन्होंने वो सारे एलिमेंट्स अपनाने की कोशिश की जिससे जजेस को प्रभावित कर सकें। देश के लिए मेडल लेना उनका सपना है, हालांकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में वे खेल चुके हैं। फाइनल फिनिश मन के मुताबिक नहीं रहा, तो राजवीर का यहां पर परफॉर्मेंस खत्म हुआ। और अब धीरे धीरे हम पोल की तरफ बढ़ेंगे। पोल मलखम, चूंकि दो पैरेलल एक्टिविटीज चल रही हैं, एक तरफ पोल मलखम, दूसरी तरफ रोप मलखम। पोल मलखम पर हैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के खिलाड़ी, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के खिलाड़ी। 5वें कंटेंडर हैं पोल पर प्रणीत यादव। शुरुआत ह्यूमन फ्लैग के जरिए टॉप पर पहुंचे, बजरंग पकड़, उसके बाद तेजी के साथ नीचे आना। लैग्स का जो परफॉर्मेंस रहा करता है वो दरअसल जजेस को प्रभावित किया करता है, दर्शकों को चौंकाया करता है। ये सिर्फ चौंकाने का लक्ष्य नहीं है, ये अपनी योग्यता को साबित करने की जवाबदारी है हर एक खिलाड़ी की, और ये किया जाता है। कल इस बात की चर्चा हो रही थी आयुष और मेरे दरमियान, चकोर आसन की तरफ बढ़ते हुए। ये पैर जब सीधा होगा ये चकोर आसन कहलाता है। कई और चीजें हैं, ये अगर जमीन पर होते तो शीर्षासन कहलाता, वन हैंड मयूर आसन, कि आप नेचुरल जो गुरुत्वाकर्षण रहा करता है उसके खिलाफ आप जंग छेड़ा करते हैं। आप हवा में अपने काम को अंजाम दिया करते हैं लैंडिंग की तरफ पहुंचते हुए। ये रहा समरसॉल्ट, थोड़ा साइड ऑन रहा तो उसके कारण उतना परफेक्शन नहीं मिला। निराश हैं प्रणीत यादव, लेकिन तालियां उनको मिली हैं। आज दर्शकों की तादाद यहां पर ज्यादा है। हाईलाइट पैकेज में आप देखिए कैसे उन्होंने शुरुआत की थी। यह ह्यूमन फ्लैग बनाया जाता है, आप देखिए सिर्फ एक पंजे के सहारे, एक पंजे से होल्ड करना, दूसरे पंजे से बैलेंस साधना और उसके बाद झंडे की आकृति दरअसल पैदा करना। लेकिन लैंडिंग अच्छी नहीं रही। अब 6वें और आखिरी कंटेंडर की तरफ बढ़ते हैं। कुंदन कछावा रोप पर हैं, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से। कुंदन कछावा दरअसल उज्जैन से प्रॉपर नहीं है, शाजापुर से हैं, लेकिन विक्रम विश्वविद्यालय में पढ़ा करते हैं। शाजापुर मध्य प्रदेश का एक लोकप्रिय शहर है। हैंगिंग मलखम पैनल 19 वर्षीय हैं। 2 नवंबर की उनकी पैदाइश है, 2 नवंबर 2011 की। किसान परिवार से आते हैं। जाना सर प्लीज। रोप पर 18 एलिमेंट्स अपनाने होते हैं 90 सेकंड में। आपकी जगह पे जाइए। ये रही बजरंग पकड़, क्या इसके बाद लैंडिंग करेंगे? लेकिन नहीं, अभी ऊपर जाना है, अभी कुछ और करना है। जजेस को प्रभावित करने के लिए अपने सारे प्रयास करने हैं। ये निद्रासन, कई आसन जो सामान्य तौर पर ध्यान आते हैं वो आप देख सकते हैं। जजेस के पास सब कुछ है, वो सारी बारीकी है जिसके जरिए ये इनका आकलन कर रहे हैं। लैंडिंग में दिक्कत, और ये बहुत बड़ी दिक्कत हुआ करती है कई बार। रोप आपके शरीर के किसी अंग को विक्रम यूनिवर्सिटी बांध लिया करती है और वहीं दिक्कत होती है। फोल्ड करना अपने शरीर को रोप के जरिए ये आसान नहीं होता, लेकिन ये करके दिखाया कुंदन कछावा ने। लैंडिंग उम्मीद के अनुरूप नहीं थी, ये कल पूरे दिन दिक्कत गई है। पर कुछ एक खिलाड़ियों को छोड़ दिया जाए तो लैंडिंग में कल से लेकर अभी तक परेशानियां रही हैं। तो 6 के 6 खिलाड़ियों ने अपना परफॉर्मेंस पूरा किया विक्रम विश्वविद्यालय की तरफ से। अब रोप मलखम पर 6वें और आखिरी कंटेंडर हैं, ये हैं तरुण कुशवाहा, भोपाल के रहने वाले 21 वर्षीय। दुर्भाग्य से इनके पापा का देहांत हो गया था जब ये छोटी आयु में थे, 2012 में। मम्मी इनकी प्राइवेट जॉब में है और मम्मी ने इनको बहुत प्रेरित किया है। समर कैंप में इन्होंने देखा विक्रम यूनिवर्सिटी हैंगिंग मलखम को और अपना लिया, मलखम के मुरीद बने और
लगातार अभ्यास कर रहे हैं। महज 12 साल की आयु में इन्होंने मलखम खेलना प्रारंभ किया और आज अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कई नेशनल इन्होंने खेले हैं, टॉप पर पहुंचे। ये सबसे खूबसूरत आसन में से एक। कुल मिलाकर 16 एलिमेंट्स अपनाने होते हैं। वार्म अप। बजरंग पकड़ जब आप रोप पर किया करते हैं वो अलग आनंद दिया करती है। द्रोणासन ह्यूमन फ्लैग की तरफ जाएंगे थोड़ा सा समय लेते हुए। ये थोड़ा सा मुश्किल रहा करता है, पूरा शरीर आपको एक तरफ रखना होता है, एक पंजे के सहारे पकड़ करानी होती है पोल को। एक और डिफरेंट आसन को लेकर आए हैं। भिन्नता बाकी खिलाड़ियों से, बाकी परफॉर्मेंस से डिफरेंट आपका परफॉर्मेंस रहेगा तो ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। हाफ टर्न के साथ 180 डिग्री के टर्न के साथ आपने लैंड किया, फिनिश किया, तो ये रहा फाइनल परफॉर्मेंस। आप हाईलाइट पैकेज में और अच्छे से देख पाएंगे कैसे टॉप पर गए, कैसे एक्टिविटीज को उन्होंने स्पीड के साथ और पूरे कंट्रोल के साथ अपनाया। ये महत्वपूर्ण है। और कई चीजें ऐसी रहीं जो आई कैचिंग रहीं, दर्शकों ने पसंद किया, तालियां बजाई। और निश्चित तौर पर ये द्रोणासन कहलाता है। यहां से हाफ टर्न या फुल टर्न के साथ आमतौर पर फिनिश किया जाता है, लैंडिंग की जाती है। बहुत मुश्किल तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है। तो कुल मिलाकर 6 परफॉर्मेंस पूरे हुए। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय उज्जैन भोपाल और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, 2 दल इस समय मलखम अरीना में मौजूद हैं। बाबू बनारसी दास लखनऊ विश्वविद्यालय का ये मलखम अरीना, ये सीनियर व्यक्तित्व आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां पर यतिन केलकर, जिनसे कल सुबह के सत्र में बात की थी हमारे साथी आयुष शर्मा ने, उन्होंने बताया था कि क्या संभावनाएं हैं, किस तरीके से मलखम आगे बढ़ रहा है। उनके साथ हैं हिमानी परब, एक ऐसी खिलाड़ी जिसने मलखम से पूरे देश को चौंकाया। अर्जुन पुरस्कार उनके पास में है, ये बड़ा सम्मान है। हर दिल में देश, दिल की हर धड़कन में देश, दिल की हर सांस में देश। देश के लिए जीना, देश के लिए समर्पित होना, यह हर मन में रहा करता है और इससे गर्व होता है। हम हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ भी दें वो कमतर ही है। तो मलखम प्रतियोगिता पहला चरण दरअसल संपन्न हुआ है। 2 दलों ने एक वेन्यू पर अपना काम खत्म कर लिया है। आयुष मेरे साथ हैं। आयुष, अगर आपसे जानना चाहें, आज ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट रहे रोप पर और पोल पर, कैसे लगे? उम्मीदों के अनुसार थे? क्योंकि आपने इस चीज को बताया कि मैंने जब मलखम को देखा कल फर्स्ट टाइम तो मैं अचंभित था। It literally was sensational to see all the competitors performing on rope Malcolm and pole Malcolm. Pole Malcolm, every time we have seen that it's very, very difficult. You need to have that strength in your thigh. On the other hand, in the rope Malcolm, you need to have that core strength, where your core is strengthened enough to hold yourself, your body, and then the most beautiful part of that rope Malcolm is when the players unfold themselves. But on your screens, the visual are straight away from the hanging Malcolm. Well, the competitors will have to perform all the asanas in hanging Malcolm in total of 14. The minimum number of elements in the very same given amount of time, that's 60 to 90 seconds. These competitors will give challenge to themselves. It's a race between you and your potential. It's never between you and the other player. Remember, not even a single university will perform for the second time. Once your performance is done, it's done and dusted. And the university with maximum number of marks will go ahead. So as far as the scoreline is concerned, this is Kundan, who got 7.20 points. Rajveer with the maximum number of scores, 8.35. Hemant got 7.32. Deepak got 7.40. Vishnesh, who got 8 points. And the point line change. We are waiting for the result of Barkatullah University.
But these warm-up sessions have been phenomenal. And with each and every passing exercise, when you move from pole to rope, when you move from rope to pole, it's never going to be easy for you. But yes, of course, these are professional players. They've been practicing a lot hard. So it's never going to be that tough for them. So now, the Vikrama University will move towards the hanging Malkham. On the other hand, the Barkatullah University, who are performing those pole Malkham exercises, they'll be shifted toward the rope Malkham. Technical official. The volunteers, the players. Remember, girls will be in action from tomorrow. 8 university competing in this edition of Khelo India University Games as far as Malkham is concerned. So 8 teams from male, 8 teams from female. And in these red coats are always the technical officials, the key members who make all these assignments possible. It's never been tough for them. Barkatullah up against Vikrama. We have seen the results of Vikrama University. Barkata University on the other hand. Now they are towards that rope area. Yeah, sir. So these are some landings, some visuals of the beautiful or perfect, maybe some of them were imperfect landings that took place in yesterday's encounter. Mumbai University was in action, and we are also bringing these landings from different angles for you so that you can understand how exactly the broadcast wheel also works and how beautify the broadcast wheel does to whatever the action taking place is. Final few landings were spot on. But few of the players were competing up against each other. They were finding it difficult. The players, they are still waiting for the opportunity. How do you see this, Prashant? If you see girls watching the action of boys and they know that they themselves will have to perform tomorrow. But you have to wait for 2 days at least. That's the norm. इंतजार कई बार इंतजार का फल मीठा भी होता है, लेकिन इंतजार तो इंतजार है. आज तक के जो दिन तय किए गए थे वो बॉयज कैटेगरी पुरुष वर्ग के लिए थे. कल से महिला वर्ग के मुकाबले प्रारंभ होंगे. अपना परफॉर्मेंस देंगे महिला वर्ग के कंटेंडर. लेकिन महिलाओं की अगर उपस्थिति की बात की जाए, रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए, तो यहाँ पर मौजूद हैं तमाम वॉलंटियर्स जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से भी आए हैं. लखनऊ से कहीं ज़्यादा तादाद में है. और ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन सारे युवाओं के लिए एक बड़े खेल इवेंट से जुड़ना. खेलो इंडिया अपने आप में विश्वविद्यालय स्तर के खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा मंच है, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं. सिर्फ पढ़ाई में मसरूफ़ रहना ये पर्याप्त नहीं होता. अदर एक्टिविटीज़ में अगर वे शामिल होते हैं और ख़ासतौर से उन्हें किसी खेल विशेष में योग्यता हासिल है तो उसका उपयोग किया जा सके, उनको गाइडेंस भी मिले, उनको दिशा भी मिले. ये इसका उद्देश्य है. विश्वविद्यालय स्तर के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाना, ओलंपिक तक उनको पहुंचाना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुकाबलों में देश के लिए तैयार करना खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दरअसल उद्देश्य है, टारगेट है. और इसके लिए स्वयं प्रधानमंत्री, स्वयं केंद्र सरकार बड़ा काम कर रही है. Kundan is getting himself prepared from the Vikrama University as they've just shifted towards the hanging Malkham. The pole has been gripped with some sort of powder so that the competitors can get some perfect grip over it. And as you know, it's a big platform for these young competitors. They also would love to play at international level to bring some medals for the country. And as we mentioned yesterday, there have been 2 World Championships, India being the champion both the times. We are the current champion. And it's a moment of proud for all of us, Madam, for all the Indians. Excuse me, volunteer.
फरवरी 2019 में रखो, आप ऊपर बैठ पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित हुई थी आयुष। चेयर ऊपर रखो, मुंबई में ही आप इसका ऊपर आयोजन बैठो। हुआ था, जहां भारत वर्ल्ड चैंपियन बना था। और इंडिविजुअल कैटेगरी में भी भारत वर्ल्ड चैंपियन बना था। दीपक शिंदे भारत की तरफ से शामिल हुए थे। नई शुरुआत, पोल मलखम, रोप मलखम और अब हैंगिंग मलखम। यहां हैंगिंग मलखम में On the second last position, and Barkatullah University not getting that much of points in the pole Malcolm, but they are looking good enough in the rope Malcolm. Ample of discussion still goes on. Some chit chats, how have you performed? Were your asanas perfect enough? How difficult they were? In total, 9 jury members. This is Prashant, was gaining some information from the players. When have you started playing? Where have you played? And the players were also calculating the scores. And this is good. Self-analyzing is good. Once you know what mistakes you have made, you need to rectify those mistakes. These are the female participants who will be in action tomorrow. This is the last day for boys to be in action. रोप मलखम Tomorrow and panel. day after, it's going to be girls who will be in action. All the same 8 universities, University of Mumbai, Wales, Hanging, start. Sant Judges, Gad ke Baba, Amravati University, Mangalore University, Vikram University, Barkatullah University. 2 more to be followed in the afternoon session. Well, it's time for the hanging Malcolm. And in the hanging Malcolm from the Vikram University, this is Hemant. They've changed up the competitors, so once I get the official name of this guy, I'll let you know. सचिन पहले आ गया कुंदन की जगह। अभी कुंदन का थर्ड पर आएगा। सचिन और कुंदन को एक्सचेंज किया। So this is Kundan, who is in action right now. Kundan holds the ball with the thigh, goes downwards, trying to balance the body with his hands. रोप. Look at the stamina, look at the strength and the toughness in the core. Next player, How be ready. straight he is, how strength he is, how powerful he is. हेमंत सेकंड है। हाँ, थर्ड आएगा। अरे एक्सेस करके खत्म। सम कंफ्यूजन करके खत्म। ये टिक मारा मैंने सचिन के। सेकंड शुरू हो रहा था, उस पे टिक मारा था। तो अब ये थर्ड है। कौन सा? अब ये थर्ड। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ। सचिन फर्स्ट भी चला गया। Grip in this game, in this contest of Malcolm is always important. You need to hold the grip decently. Getting your legs inside out. Holds with the thighs, gets himself back, comes down. Landing was spot on this time. And this is comparatively easier. Until and unless you don't push that hanging Malcolm, you can land decently because of the height difference is not that much. Your distance from the ground is not massive. Perfect execution. Look at the core strength. Look at the flexibility of this guy. Has always been phenomenal. Strength enough. Holds. Gets that pole coming back. Holds it with due respect. And sums his performance. The technical team. This angle seems as if they're looking at the top floor, but no, it's not like that. The Rome Malcolm begins. वो तो हेमंत की था। इसको तो सही जा रहा है सीक्वेंस। सेकंड नंबर देखो, इसका सेकंड कौन? रोप पे राहुल। Rahul
from the Barkatullah University in that rope Malcolm, the second competitor for the team. The first one was Shubham, was already completed his performance. Movement is a downward one. Goes for another grip, holds that ankle, that rope with that ankle. And he's got crab bandage attached over there. I'm not too sure whether he's injured or it is just to prevent the injury concern. Hangs downward, comes slowly, gets a jerk to the body, finding it difficult to get over that rope. He is climbing, but I don't think that he was comfortable enough while that climb. Has got that smile on the face, jumps down from almost 1/3 of that rope length. That's the only reason the landing was fine enough. It was never that bounce back sort of a landing. Trying to build that angle, shows it, sleeves there, jerks downwards. Here it was. Once he missed the opportunity. Second time he was looking for a chance to get over that area. And now after the completion of the performance, his calm, composed. On the other hand, the third participant is there on the rope. Was just there for the practice. Hanging Malcolm, next player. You need to be calm, you need to be composed, you need to balance the discipline. And we are not just live with Malcolm. We are showing you the live coverage of kabaddi, table tennis, and basketball. So stay connected with the broadcast of Khelo India University Games. Technically 2022, which are being taking place in 2023. Vikram University. So we'll bring on Rahul. Ready hai? Rope Malcolm. It's finished. Hanging Malcolm. Hanging Vikram ये है ना, विक्रम थर्ड पे सही है वो। ये विक्रम नहीं है सर, ये वो विक्रम है, तो उसमें थर्ड पे कुंदन जाएगा। This is Kundan waving his hand, giving that official confirmation that yes, I'm going for the live action now. He has got a wide stance, goes on with a jump, hangs around perfectly. Lot of support for him. Crowd has been cheering for him. I'm not technically that sound, but that cheering says it all. That the technical perfection was always there in that beginning for Kundan. Trying to create that human flag with that hanging position. This is phenomenal. Lot of cheers for him. I'm not too sure whether you viewers can listen to the ambience of the mic or not, but I'm too sure the clapping says it all. Another flag position, gets back down. He's got perfect composition. What a guy it has been, Kundan, in that hanging Malcolm for the Vikram University. Although the Vikram University is leading the encounter up against the opponent Barkatullah University as of now, right after the completion of the first one. What a support. Sometimes the support goes in your favor, sometimes it doesn't. Twisted it, goes with a lot of speed, showing the aggression, showing the desperation. That's more important. Whether he has got bones in his body or not, I'm still confused. But he's using whatever he has got. Jumps down. A lot of cheers from the supporters. They knows it. They knows that the performance was fine enough. This was Kundan, who has just finished in performance. So we have seen 3 competitors from Vikrama University who completed their stance in the hanging Malcolm position. And the speed that Kundan was delivering the action with was quick enough, holding the pole with a single hand and then giving that respect. The rope Malcolm begins on the other hand from the Barkatullah University. The guy in action in the rope Malcolm is Uttar. Just to give a casual reminder to all of, I beg your pardon for that in advance if I make that name mistake.
using his angle beautifully to hold that rope, and now he'll be unfolding himself. Unfolds with 2 twists. Comes very low, comes very, very low. Lucky enough he didn't touch the ground. If your foot touches the ground, which definitely means that it would be considered to be intactful, and your intact from the rope was not there, you're holding the rope once again, which will never gonna impress the judges, and you're always looking for that sort of impression. Single-handed, the thumb and the index finger holding up that rope, which gives some sort of grip. The Barkatullah University, but none of the university has been giving that tough call to their opponent. That's Mumbai University, the University of Mumbai. The players who performed yesterday were phenomenal. The landing was decent enough. This signifies his performance. Sorry to say, third competitor, Uttar from the Barkatullah University, without any change. Here was the moment where he unfolded himself with 2 twists. Gets very low. Didn't even touch even a single body part toward that carpet area, toward that mat area, which is fluffy, which is spongy, which bounces you back once you land over there. Prashant, 3 competitors from Barkatullah have finished their assignment. 3 from the Vikrama University have finished their assignment. So 6 more performances to go as far as this round is concerned. पोल मलखंब पर विक्रम विश्वविद्यालय के विश्नेश अपने साथियों से उत्साहवर्धन पाते हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 की मलखंब प्रतियोगिता पुरुष वर्ग की टीम चैंपियनशिप के मुकाबले आज दूसरे दिन का पहला सत्र चल रहा है। विक्रम विश्वविद्यालय और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के खिलाड़ी हैं, ये हैं विश्नेश। इनको दरअसल गोपाल भी कहा जाता है। विश्नेश सुगंधी इनका नाम है। वो उज्जैन के रहने वाले मोहनलाल बंबोरिया इनके कोच हैं। लेग्स कॉम्बिनेशन ये बहुत महत्वपूर्ण रहा करता है। झूलता हुआ पोल ये ज्यादा चैलेंजिंग, अच्छी लैंडिंग, सराहना मिली तालियों के सहारे विश्नेश सुगंधी को। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो मुझे लगता है, संभवतः हमारे दर्शकों को भी लगेगा, कि झूलता हुआ पोल, हैंगिंग मलखम, ये सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा करता है, क्योंकि आपको यूं भी हवा में ही काम करना है, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम करना है, और हिलते हुए पोल के साथ लैंडिंग करना विश्वसनीय तरीके से ये आसान नहीं होता। तो विश्नेश ने इस तरीके से अपना काम खत्म किया। दर्शकों की निगाहें अब रोप मलखम की तरफ होंगी और हम भी चलेंगे रोप मलखम की तरफ। रोप मलखम पर नंबर 4 इस समय है प्रणीत। प्रणीत नटराज आसन ऊपर की तरफ, यह आसान नहीं होता। अपने पूरे शरीर को साधना, एक पतली सी रस्सी। देखिए, आप सिर्फ अंगूठे और उंगली के दरमियान ग्रिप बनाना,
लीजिए, निद्रासन भी आ गया, आपने आराम भी किया, आराम का यानी निद्रासन का आपने प्रदर्शन भी किया, बजरंग पकड़ और फाइनल लैंडिंग। हालांकि झूलती हुई हिलती हुई रोप उसके जवाबदारियां रहा करती हैं। एक तो आपको समय के साथ तालमेल बैठाना है, जो डिसाइडेड एलिमेंट्स हैं उनको पूरा करना है, 90 सेकंड के भीतर वो एलिमेंट्स भी पूरे करने हैं, जजेस को प्रभावित करने के लिए अच्छा फिनिश भी करना है, और सबसे जो बड़ी बात है वो सेकंडों का ध्यान रखना है। सेकंड जो पलक झपकते गुजरते हैं वहां 16, 18 या 14 एलिमेंट्स शामिल करने हैं। ये आसान नहीं है। सिंपल कैलकुलेशन में भी आप 18 तरीके के आसन अगर 90 सेकंड में लगा रहे हैं तो भी असंभव सा दिखता है, लेकिन विष्णेश जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने अपनी कोशिश पर्याप्त की है। अब बढ़ते हैं निगाहें कैमरे के उन व्यक्तित्वों की तरफ जो बतौर जज काम किया करते हैं। रोप मलखम रेडी है? स्टार्ट रोप मलखम। आप दोनों ही तरफ पोल मलखम और रोप मलखम पर खिलाड़ी पहुंचते हुए, हैंगिंग मलखम पर, माफ कीजिएगा, पोल वहां भी दिखाई देता है तो कई बार कंफ्यूजन हो जाया करता है। ये हैं हैंगिंग मलखम पर। नंबर 5 राजवीर विक्रम विश्वविद्यालय से, जबकि रोप मलखम पर भी परफॉर्मेंस से प्रारंभ होने जा रहा है। अब देखना है, हम रोप मलखम पर चलेंगे क्योंकि यहां का परफॉर्मेंस शुरू हो गया है। रोप मलखम पर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के खिलाड़ी हैं। नंबर 5 सागर थोड़ा सा डिसबैलेंस हुए और ये बड़ी मुश्किलों भरी बात रहा करती है। सिर्फ एक खिलाड़ी का ही नहीं बल्कि पूरे टीम का लक्ष्य जो रहा करता है वो कहीं ना कहीं से मुश्किलें पाता है। सागर सिंह चौहान भोपाल के रहने वाले, 13 वर्ष की उम्र में मलखम को देखा और आकर्षित हुए, फाइनली खिलाड़ी बने, नेशनल खेल चुके हैं, देश के लिए मेडल जुटाना उनका लक्ष्य है। रोप को किस तरीके से अपने शरीर की तमाम सारी कोशिशों के लिए उपयोग कर रहे हैं। शुरुआत में डिसबैलेंस होना, शुरुआत में गलती कर बैठना, उसके बाद संभालना। बजरंग पकड़ फाइनली यहीं से लैंड किया करता है, लेकिन कुछ अच्छा नहीं घटा आज सागर सिंह चौहान के जरिए। निराश भी हैं, बहुत जल्दी स्पॉट छोड़ा, जो बैंड थी वो खुली और यहीं से दिक्कतें पैदा हुई। जहां भी किसी भी काम में अगर आप कहीं अनइजी फील करते हैं तो परफॉर्म कर ही नहीं सकते। सागर के हिस्से में यही आया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित तौर पर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के खिलाड़ी थोड़े से चिंतित होंगे। 6 खिलाड़ी परफॉर्म किया करते हैं, टॉप 5 स्कोरर काउंट, उनके स्कोर काउंट किए जाते हैं। ये है सागर सिंह। और अब हैंगिंग मलखम की तरफ जा रहे हैं। हैंगिंग मलखम में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं। राजवीर की बारी है, जो इंतजार कर रहे हैं जजेस के सिग्नल का। मलखम, देश में लंबा इतिहास है मलखम का, कई जगह मलखम का उल्लेख मिलता है। आप अगर ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं मलखम के इतिहास को भी समझेंगे। लेकिन अगर विधिवत बात की जाए मलखम की, तो आज़ादी के बाद से ही मलखम ने अपनी योग्यता प्रमाणित करनी शुरू कर दी। 60 का जो दशक रहा था, मलखम जिम्नास्टिक से जुड़ा रहा, लेकिन धीरे धीरे जब 80 का दशक सामने आया, मलखम अपनी सेपरेट स्वतंत्र जगह बनाने लगा। 1980 में मलखम एक अलग खेल के तौर पर जाना जाने लगा, जिम्नास्टिक से अलग हुआ, फेडरेशन बनी मलखम की,
1980 में ही। उसके बाद कई खेलों में मलखम शामिल हुआ। रोप पर चूंकि प्रदर्शन शुरू हो गया है विक्रम विश्वविद्यालय की तरफ से, नंबर 5 बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की तरफ से सागर, तरुण कुशवाहा दरअसल पहुंचे हैं रोप पर, वहां थोड़ा डिले हुआ है हैंगिंग मलखम पर। तरुण कुशवाहा 21 वर्षीय युवा खिलाड़ी मलखम के। नटराज और हर तरह के आसन, कुल मिलाकर अगर आप रोप मलखम की बात करें 18 एलिमेंट आपको इस्तेमाल करने होते हैं 90 सेकंड में। मुद्राएं अलग अलग, थोड़ा सा अंतर पैदा करें अपने बाकी खिलाड़ियों के मुकाबले, तब आप बेहतर साबित होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, जजेस भी तभी प्रभावित हुआ करते हैं जब कुछ ओरिजिनल सामने आए, जब कुछ विशेष सामने आए, आपका स्वयं का कुछ विशेष सामने आए। और ये करने का प्रयास करते हुए बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के 21 वर्षीय तरुण कुशवाहा। तरुण कुशवाहा कई नेशनल खेल चुके हैं, लैंडिंग उनकी सही नहीं है, निराश हैं थोड़े से लैंडिंग में, लगातार कल से अभी तक दिक्कत देखने को मिली है। अच्छी फिनिशिंग अधिकांश खिलाड़ी कर नहीं पाए हैं, तलाशते हुए रोप को ग्रिप बनाने के लिए। और तलाश जब आप किया करते हैं समय ज़ाया होता है, और समय ज़ाया हुआ तो सारी चीज़ों में व्यवधान आया करता है, आपकी सोच में, आपकी कोशिशों में, आपके रिजल्ट में। और वही देखने को मिला। फाइनल लैंडिंग जो निकलते हुए सेकंडों के साथ मैच नहीं कर पाई, वही वजह बनी कि लैंडिंग आपकी अच्छी नहीं हुई। तरुण ने अपना परफॉर्मेंस पूरा किया इस तरीके से। रोप पर भोपाल विश्वविद्यालय ने, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के सारे अटेम्प्ट पूरे हुए। ये हैं हिमानी परब, उनके साथ जानवी यादव बैठी हुई हैं। ये दोनों ही वर्ल्ड चैंपियन टीम की मेंबर रही हैं, भारत को रिप्रेजेंट किया है। अर्जुन अवार्डी हैं हिमानी परब, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जानवी यादव, दोनों ही आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। मलखम का गौरव हैं, देश की प्रतिष्ठा है। कभी मौका लगेगा तो आपसे बातचीत करेंगे हिमानी परब और जानवी यादव। कुछ वॉलंटियर्स, कुछ दर्शक, कैमरा पर्सन की निगाहें लगातार उन सब की तरफ रहा करती हैं जो मलखम के इस अरीना से जुड़े हुए हैं। अभी मोबाइल पर हैं, लेकिन जैसे ही परफॉर्मेंस प्रारंभ होंगे निगाहें वेन्यू पर पहुंच जाएंगी, अरीना पर पहुंच जाएंगी। लखनऊ जो अदब का शहर माना जाता है, यहाँ इतिहास भी है, यहाँ संस्कार भी हैं और यहाँ अदब भी है। नवाबों का शहर, अदब का शहर और जिसका लंबा इतिहास है वो शहर। उत्तर प्रदेश को संस्कारधानी बोला जाता है। देश की कल्चर जो आता है देश का, उसमें बड़ी भूमिका अदा करता है उत्तर प्रदेश। और आज उत्तर प्रदेश में ही पहुंचा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का ये पड़ाव। आज दरअसल मलखम का दूसरा दिन है, लेकिन प्रतियोगिता 23 मई से ही प्रारंभ हो गई थी। कबड्डी खेल प्रारंभ हो गया था 23 मई से ही। अभी कुछ परफॉर्मेंस बाकी हैं हैंगिंग मलखम के, कहीं कोई दिक्कत है, थोड़ी चर्चा चल रही है। हैंगिंग मलखम पर विक्रम विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस देना है। 4 परफॉर्मेंस हो चुके हैं, 2 बाकी हैं। राजवीर को आना बाकी है, थोड़े चिंतित भी हैं। कई बार इंतज़ार आपको परेशानियों में डाला करता है और उम्मीद करनी चाहिए कि इंतज़ार से कम खिलाड़ी के जज्बे में राजवीर एंड कंपनी, राजवीर को आना है, उसके बाद
छठवें नंबर पर परफॉर्मेंस रहेगा दीपक का। तो राजवीर और दीपक रोप मलकाम अपना अटेम्प्ट Over. लेंगे, उसके लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा। प्लीज नेक्स्ट प्लेयर लीजिए, जाना सर। घोषणा हुई है और अब टेक योर सीट। राजवीर और दीपक, इन दोनों को परफॉर्म करना है। राजवीर पहुंचते हुए हैंगिंग मलखम, ऐसा खेल जहां पर आपको बहुत सारे चुनौतियों से जूझना पड़ता है। स्टेबल जो रहा करता है पोल, वहां तो आप अपने तरीके से अपनी एक्टिविटीज को अपना सकते हैं, लेकिन ये बेहतरीन समरसॉल्ट के साथ पकड़ बनाई। 90 सेकंड की शुरुआत हुई है हैंगिंग मलखम पर। राजवीर गजब करते हुए हैंगिंग मलखम पर ह्यूमन फ्लैग, ये आसान नहीं होता। राजवीर कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 में टीम का हिस्सा रहे, वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा रहे हैं। अनुभव उनके पास है 25 वर्षीय। हैंगिंग मलखम पर आप पोल मलखम जैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, ये अद्भुत है। उज्जैन जो गढ़ माना जाता है मलखम का, वहां से आते हैं। ये देखिए, बजरंग पकड़ का उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। शरीर के जरिए आप किन बेहतरीन आसन को अपना सकते हैं महज 90 सेकंड में, ये आपको दिखाना है। हैंगिंग मलखम में 14 एलिमेंट्स आपको अपनाने होते हैं। ये कॉम्बिनेशन अलग अलग एक्टिविटीज के दर्शकों से कहीं ज्यादा जजेस को प्रभावित करने का प्रयास रहा करता है। नटराज आसन अगर आप यहां जाते हैं तो ये और मुश्किलें दिया करता है, लेकिन जब ये सद जाता है तो दर्शक ही नहीं जज भी प्रभावित हुआ करते हैं। लैंडिंग फाइनली, और बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। हालांकि उम्मीदें कभी किसी खिलाड़ी की पूरी नहीं होती हैं जो जता रहे हैं राजवीर के हाव भाव, लेकिन फिर भी उन्होंने सभी को प्रभावित किया। गजब का प्रदर्शन किया। स्टार्ट बहुत तेजी के साथ लिया था, पूरे कंट्रोल के साथ राजवीर ने। राजवीर सिंह, पापा ने प्रेरित किया मलखम से जुड़ने के लिए। महज 9 साल की आयु में उन्होंने मलखम ज्वाइन किया। अब पापा नहीं हैं, मम्मी के साथ जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अद्भुत काम कर रहे हैं। आप पे गर्व है राजवीर, समूचे देश को, क्योंकि आप वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा रहे हैं। आने वाले समय में आपका जो सपना है इंडिविजुअली देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल करना। खुश नहीं है, थोड़ी थकान जरूर चेहरे पर है राजवीर के, लेकिन आपका परफॉर्मेंस, आपके एफर्ट्स आपकी थकान को दूर कर दिया करते हैं। थोड़ा सा समय और लग रहा है, चूंकि आखिरी कंटेंडर आने हैं विक्रम विश्वविद्यालय के। दीपक पहुंचेंगे थोड़ी ही देर में, बल्कि वे पहुंच चुके हैं। थोड़ी सी औपचारिकता पूरी की जा रही है। ये है वो हैंगिंग मलखम जिस पर आप मलखम के तमाम नियमों के तहत अपना प्रदर्शन किया करते हैं। खेल का अपना एक तरीका, अपनी एक विधि हुआ करती है, उसके
अनुरूप ही आपको प्रदर्शन करना होता है। सामान्य दृष्टि से तो बहुत सारी चीज़ें आजमाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, लेकिन आप जब नियमों से बंधे होते हैं, वो खेल का अपना तरीका रहा करता है, वो आपको चुनौती भी ज़्यादा बड़ी दिया करता है और आपसे उम्मीदें भी ज़्यादा बड़ी किया करता है। मुंबई यूनिवर्सिटी सबसे आगे चल रही है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। 119.80 अंक हैं, पहली रैंक है। वेल्स यूनिवर्सिटी चेन्नई की टीम 111 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर। अमरावती विश्वविद्यालय 104 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर। मैंगलोर कर्नाटक की ये टीम 103 अंकों के साथ चौथे स्थान पर। ये वो 4 टीमें हैं जिन्होंने कल परफॉर्म किया था। आज शुरुआती चरण में 73.10 अंक के साथ बरकतुल्ला विश्वविद्यालय आगे है, जबकि विक्रम विश्वविद्यालय पिछड़ा है। हालांकि विक्रम विश्वविद्यालय का अभी एक खिलाड़ी का प्रदर्शन आना बाकी है, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जी हां, दीपक। गति से ज्यादा संतुलन और नियंत्रण पर ध्यान दिया दीपक ने। पोल मलखम जो हवा में रहा करता है, उसे हैंगिंग मलखम का नाम दिया गया है। कुल मिलाकर 14 एलिमेंट्स हैंगिंग मलखम पर अगर आप फ्लैग की आकृति हासिल कर लिया करते हैं, ये असंभव सा काम रहा करता है। लेकिन उज्जैन और विक्रम विश्वविद्यालय यहाँ की कोशिशें, यहाँ के अभ्यास पारंगत बनाया करते हैं। थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ाई है, चूंकि आपको 90 सेकंड में 14 एलिमेंट्स को हासिल करना है। और अब कॉम्बिनेशन आपके एफर्ट्स का जो जजेस को प्रभावित करेगा, दर्शकों को प्रोत्साहित करेगा, उत्साहित करेगा। आवाजें दरअसल गूंज रही हैं इस मलखम अरीना में। लखनऊ का बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय का ये मलखम अरीना समय पर्याप्त है। जिस तेजी के साथ, जिस गति के साथ दीपक काम को अंजाम दे रहे हैं, थोड़ा सा मिस टाइम तो जरूर हुआ है, थोड़े निराश भी हैं, लेकिन हैंगिंग मलखम में हर बार चुनौती बढ़ जाया करती है। समय को साधना, एलिमेंट्स को पूरा करना, ये जो आसन रहा करता है। ह्यूमन फ्लैग स्टेबल पोल पर तो ये आसान लगता है, कम से कम इसके मुकाबले। साधारण व्यक्ति के लिए स्टेबल पोल पर भी ये आसान नहीं है, लेकिन हैंगिंग पोल पर ये तो असंभव जैसा काम लगा करता है। और फाइनली लैंड किया और फिनिश किया। कमर में थोड़ा सा दर्द महसूस कर रहे हैं। तो इस तरीके से विक्रम विश्वविद्यालय ने भी हैंगिंग मलखम पर अपने सभी खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पूरे कर लिए हैं। दूसरी तरफ बरकतुल्ला विश्वविद्यालय ने रोप मलखम पर अपने सारे परफॉर्मेंस पूरे कर लिए हैं। यानी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन और बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, इन दोनों ही दलों ने अपने दो जो अटेम्प्ट रहा करते हैं वो पूरे कर लिए हैं। अगर विक्रम बरकतुल्ला विश्वविद्यालय की बात करें तो उनका हैंगिंग मलखम पर परफॉर्मेंस अब आगे आएगा, जबकि विक्रम विश्वविद्यालय अब बढ़ेगा पोल मलखम की तरफ। तो दोनों ही दल अब अलग अलग जगह पहुंचेंगे। दर्शकों की तादाद थोड़ी सी बढ़ती दिखाई दे रही है। आज दूसरा दिन है, क्योंकि कई खेल लखनऊ में आयोजित हो रहे हैं। सभी तरफ दर्शकों का ध्यान रहेगा, उनकी पहुंच रहेगी। ये अभी अभ्यास का समय है। आज दूसरा सत्र भी देखने लायक रहेगा, जब भारत के करंट वर्ल्ड चैंपियन जो हैं दीपक शिंदे, वो परफॉर्म करेंगे। इस बार वे पंजाब विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुंबई विश्वविद्यालय से पिछले बार उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। टीम चैंपियनशिप में मुंबई विजेता बना था, तब दीपक शिंदे उसका हिस्सा थे। दीपक दोपहर के सत्र में अपना परफॉर्मेंस देंगे लंच के बाद के खेल में। अभी जगह चेंज हुई है, लेकिन इरादे चेंज नहीं होंगे। ये बहुत सीधी सी बात है। जो गुंजाइश रही बाकी के इवेंट्स में,
वो अब नई इवेंट में पूरी करेंगे, ये उम्मीद करते हैं। तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, ये मुकाबले अब अलग अलग इवेंट में सामने आएंगे। विक्रम विश्वविद्यालय पहुंचा है पोल मलखंब पर, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय पहुंचा है हैंगिंग मलखंब पर, और आयुष शर्मा पहुंचे हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स में। आयुष, एक बार फिर स्वागत है। आपने बात की लोगों से, यहाँ के दर्शकों से, खिलाड़ियों से भी आप रूबरू हुए। कुल मिलाकर मलखंब आपको चकित भी कर रहा है, आकर्षित भी कर रहा है, यह आपने अपनी जबान में, अपनी भाषा में बताया हमारे दर्शकों को। ओवरऑल कल से लेकर आज तक क्या अनुभव किया आपने इस खेल को लेकर? कभी जिम्नास्टिक का हिस्सा हुआ करता था, आज सेपरेट गेम है और दुनिया के 45 से ज्यादा देश इस खेल को खेल रहे हैं। First of all, straight away I went to the University of Mumbai and I asked them, why are you doing the warm-up? Your performance is done and dusted, and in this edition of Khelo India University, you will never be getting any other opportunity to perform. So they said, sir, ये जो फिजिक बन रखा है ये रोज प्रैक्टिस करने से बना है, and if we won't do practice, तो ये शरीर मेंटेन कैसे रहेगा? So it is a valid point. It's not just the players who will be competing today or maybe tomorrow. They are doing the warm-ups. All the players, they are always dedicated towards the game of Malcolm. And that's what the key is. Consistency is the key. If you're consistent enough, you'll be performing decently for your university. And no one knows, or maybe God knows, I should say, one day you'll be performing at international level, representing the country, getting the medals for your country, getting the medals for your nation, for your countrymen. ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। हमारे दर्शकों को भी इस बात की समझ है, जो खेल प्रेमी हैं, खेलों से जुड़े हैं, इसीलिए वो हमसे भी लगातार जुड़े रहा करते हैं। डीडी स्पोर्ट्स उनके लिए वो सब कुछ लेकर आता है जिसकी चाहत, जिसकी इच्छा वे रखा करते हैं। खेल प्रेमी हैं तो जानते हैं अभ्यास कितना महत्वपूर्ण रहा करता है। इवेंट आएगी अपनी तारीख पर, इवेंट का समय होगा, तारीख होगी, लेकिन आपका अभ्यास निरंतर होना है, और अभ्यास से बढ़कर खेलों की दुनिया में कुछ नहीं होता। कई बार ये भी कहा जाता है आपके पास मैच अभ्यास होना चाहिए, इवेंट की प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो यहाँ मिली है, लेकिन उसके अलावा भी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए, और उसका उदाहरण आपने मुंबई विश्वविद्यालय की टीम के खिलाड़ियों से हासिल किया, हमारे दर्शकों से साझा किया, और सच्चाई यही है दर्शकों, अभ्यास सबसे बड़ी आवश्यकता हुआ करता है, न केवल खेलों में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में। जब आप किसी लक्ष्य की तरफ, किसी दिशा में, किसी मंजिल की तरफ बढ़ा करते हैं तो आपका अभ्यास, आपकी कोशिश, आपकी लगन मैटर किया करती है। फिलहाल अभ्यासरत हैं पोल मलखंब पर हमारे विक्रम विश्वविद्यालय के खिलाड़ी। देखना है किस तरीके का वे परफॉर्मेंस देते हैं। रोप मलखंब पर अब होंगे बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के खिलाड़ी। हैंगिंग मलखंब पर मैं माफ़ी चाहूँगा, चूँकि तीनों जो खेल हैं लगातार अगल बगल में ही जारी रहा करते हैं, तो थोड़ा सा अंतर हो जाया करता है। बहरहाल हैंगिंग मलखंब और पोल मलखंब दोनों जगह आपको पोल दिखाई देंगे, लेकिन एक तरफ झूलता हुआ पोल, एक तरफ स्टेबल। ये जो है ये बेसिक मलखंब है, यहाँ से मलखंब को सीखने की शुरुआत हुआ करती है, और जो मलखंब को जानते हैं वो इस खेल को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। लेकिन रोप मलखंब बहुत चुनौतीपूर्वक, उससे भी ज़्यादा आश्चर्य दिया करता है हैंगिंग मलखंब। ये दोनों ही, हैंगिंग मलखंब और पोल मलखंब से आप जुड़ेंगे चंद मिनटों में, क्योंकि प्रारंभ होंगे परफॉर्मेंस। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय थोड़ी सी बढ़त हासिल करे बैठा है अभी तक के अंकों के लिहाज से, लेकिन उम्मीद करते हैं विक्रम विश्वविद्यालय, जो दरअसल उज्जैन से आता है और उज्जैन गढ़ कहलाता है मलखंब का, अगला जो प्रेजेंटेशन रहेगा, अगला जो परफॉर्मेंस रहेगा, वहां विक्रम विश्वविद्यालय अपने आप को साबित करेगा। ये उनकी जवाबदारी भी है और ये उनका कौशल भी बोलता है। Vikram Vishwavidyalaya, Barkatullah University, Vikram University, both the university belongs from Madhya Pradesh. So that's a Madhya Pradesh derby in action up against each other. It's a tough competition. It's a close one though. Right now, Barkatullah in the lead. Vikram just trailing with marginal points. We'll let you know the official confirmation right after the completion of the third and the final round. The third and the final apparatus, where Paul Malcolm
and hanging Malcolm will be taking place. Right now on your screen, this is pole Malcolm, where all the competitors generally use their thigh. The strength of your thigh should be very, very accurate and should be massive enough to hold your body for the positions. Different sort of flags could be performed. Look at that switch. During the warm-ups, these guys are ready enough to take such risks. And injury, it's always been a concern. It's an injury-prone sport. Almost all the physical sports are injury-prone. So you need to be very, very accurate and you need to be determined about what you're doing. What a flip it was. Barkatullah University have finished their rope Malcolm. They've finished their pole Malcolm. Now it's time for them to join towards that hanging Malcolm. On the other hand, the Vikram University, they are done and dusted with the rope Malcolm and the hanging Malcolm. So it's time for them to go towards the pole Malcolm. The gears have been adjusted. They're adjusting the mat, which is fluffy, which is spongy, which bounces you back if you jump from that height of that pole. Warm-up, practice. And as they say, nothing is permanent in this world except changes. Look at the massive change that this sport has witnessed. Earlier, Malcolm used to be a part of gymnastics. The wrestlers, before going to the wrestling arena, before going to the akhada for that bout, for that match, they used to perform Malcolm as a warm-up exercise. And now in today's arena, Malcolm has got its own identity as an individual intact game. The hanging Malcolm, that pole, is getting some treatment. They are applying some oil and powder to that, the magnesium powder. On the other hand, the stable pole Malcolm. Hardil Madesh, Khelo India University Games, technically 2022, which has been played in 2023 in the state of Uttar Pradesh. Greater Noida, Lucknow, Varanasi. Deepak Shinde and Chandrasekhar, please report near the mic. Deepak Shinde and Chandrasekhar. So in the hanging Malcolm, where the first competition has really begun. So the Barkatullah University towards that hanging Malcolm position. And Praneeth is the first competitor who has just begun his performance. Holds up the position, upside down, uses his thigh, holds it perfectly. Looks with ups and down, turn, twist. And how beautifully he is executing. Look at the flexibility of the body, is very, very flexible. The palm has always been straight, and that 90-degree angle with that hanging Malcolm, hanging pole was phenomenal. It literally attracts. But I haven't seen a lot of competitors performing that human flag. Here we go then, human flag being performed by this competitor on that hanging Malcolm, which is never stable. It generally comes ahead, goes back, balancing the Malcolm, balancing that pole, balancing your body on that pole. Two tasks to be done simultaneously. Upside down, that's what he was doing. Comes down in style. There was no error in that landing. Although it was never that sharp that it would have impressed the judges that much. But still, that landing would work for the University of Barkatullah. In case if you missed something, this was the performance of Praneeth. Looks tall, has got great physique. In fact, who has not got great physique in the competition of Malcolm? All the competitors have got almost no fat on their body, pure muscle, sheer strength, and the scoreline goes in favor of University of Mumbai as of now.
And in this encounter, Vikram University is leading with a difference of 5.75 points. Barkatullah trailing with the very same number of points. Hemant will be in action and he'll be climbing that pole. Earlier that was hanging pole, this is pole. The action begins. Hemant starts it with his leg, with the lower part of the body, which is more agile, which has got a lot of strength. 60 to 65% of the times, the athlete, the competitors, they try to build that body part area. Front body bending exercise, that's what it is. Now the twist in your body, just to check your flexibility and the body reflexes. The reflection should be perfect. If your body has got those perfect reflexes, things are never going to be that tough for you. Brings his legs out smoothly. Right now, I haven't seen any mistake in the performance of this guy. That's Hemant. Goes for that human flag. Disbalances his body. Didn't hold it for 2 seconds. That's the minimal of compulsion. You need to hold each and every position. And in case of pole Malcolm, minimum of 16 elements. That's what you need to perform in the given period of time of 60 to 90 seconds. You can't exceed 90 seconds. At least a 60 second of time is to be consumed to make your attempt valid. The final one, the somersault. He's preparing for it. Will he be able to continue it in a decent manner? Goes for a somersault. Perfect off the landing. One of the best landing we have seen on the pole Malcolm in the day, in the morning session. Lot of cheering, lot of clapping for Hemant, as he's the first competitor. This was the moment when he was looking for that human flag. Did it for a second or two. Not completely for 2 seconds. I doubt myself for that, whether my maths was right over there or not. But yep, hopefully it was. Upside down, that was his strategy. On the other hand, it's time for the Vikrama University's opponent, the Barkatullah University. And in the hanging pole position, the action continues. And the competitor is Shubham on the second position, the second competitor in the hanging pole, with a smile on his face. Found it a bit difficult in the first attempt, but in the second attempt did the asana which he wanted to do. The execution was good enough. Holds that angle, trying to balance it, looking for that human flag. Compensates that. Finish that human flag. Few asanas, all the competitors, which are comparatively easy. Once he lost the balance with that left foot, then trying to gain it back. This is good. This is literally good. Trying to read and understand the strategy of the game first. What is the demand of the game? It's not always like each and every competitor is perfect with pole, rope and hanging. Sometimes you have your strength. I believe hanging could be the strength of this guy. Although he has made a couple of mistakes, finding it difficult to cross that leg between those hands. But finally did it. Trying to unfold himself. If you're tall enough, if you've got lengthy hands, it gets tough sometimes. The lower part of the body is also tall. Sums up his performance with another excellent effort. This is how we begin. Using the palm area of the body and the strength of the forearm. With that flexibility, with that speed. Gave some sort of jerk to the body. Went away with a straight up package. And this balance was phenomenal. Center of mass need to be taken care. Even intentionally or maybe unintentionally, you need to have that idea of the center of mass. If you have that perfect combination, if you have that idea where exactly the body mass is going, it becomes a bit easy for you to balance your body over there. He's tired. That's what I can see from here. Although your work for today is over, my friend.
But Vikrama University, who are there on the pole after the performance of Hemant, it would be Vishnesh. But on the screen you can see University of Mumbai leading, followed by the Wales University. University of Mumbai followed by the Wales University. Sant Gadge Baba Amravati University is on the third position with a massive difference from the University of Mumbai. Mangalore University Karnataka on the fourth position with 103 points. Barkatullah University and Vikrama University yet to finish their performance. They are toward the final and the third apparatus. And it would be Vishnesh. Holds the pole perfectly with the lower body part. Goes upside down. Back bend, body bend asana. Being performed toward the center of that pole. Is ready with the pole. Grip is good. Has it stuck his leg on the neck. It took a lot of time to get away from that position. Oh, fumbled. Somehow managed to stay away. Completed that human flag. Goes up high, balances the body toward that 90-degree angle with that standing pole. There's always something stunning which gives some sort of goosebumps to your body. Again, flicking himself, coming upside down. Showing the flexibility of the body. The stretching has been done in the air. Meanwhile, this is good. How swiftly, how easily has he brought his legs between both the hands and the pole. The grip was fine enough. The distance between both the feet was sufficient enough to cross that pole. Holds the position with both the feet. The toe area, jumps down phenomenally and finishes things off in style. Although it disbalances his body, but we have seen it's very, very difficult to hold your position after the landing in the pole, Malcolm. So I won't take that credit away from this guy. This was the place where it disbalanced his body. He's got a birthmark somewhere towards his rib cage area. And then the 90-degree angle followed by the somersault. Landing was good enough, but then he disbalanced himself because of the two mats indeed were puffy, and now in the hanging pole position is competitor number 3. Utkarsh was just begin with his position. Upside down. Holds it once again. And right after completing all the encounters, you need to know that things are going in your favor. Balancing the body for that human flag position. He's taking his time. He was in doubt. That's the only reason he didn't perform it. So here the marks will be deducted, that's for sure. I know that I'm technically not that sound, but I could make it very easily as a layman that human flag attempt got failed. And for the only reason, Utkarsh will have to come down. Was not that perfect, but was getting some sort of cheer and some sort of support from the competitors of his team. Some good support for the side. 3 performances from the Barkatullah University have been completed. Vikram University is still there towards the positioning area of the pole, Malcolm. But this is the highlight from the previous performance of Utkarsh, where he struggled a bit. And look here. First he thought that I'll be doing this performance. He left the left hand, but then couldn't raise his right one, which means that positioning was not perfect, not spot on. He was not confident enough, and hence some marks at least would be deducted for that attempt for Utkarsh. The results are still on the way. University of Mumbai with 119 points, right at the top with the first position. Wales on the second position with 111 points. 104.20 points for the Sant Gadge.
Baba Amrati University. 100 plus points for Mangalore University. Barkatullah under pressure. Vikram University under pressure. Although the final round is going on, we may see some sort of changes, but no competition for University of Mumbai right now. They are way ahead. 8-point difference from the Wales University. The guests, the VIPs, and the coaches, they are here to witness this encounter. The next commentator from the Vikram University is going to be Sachin, who's getting some sort of powder being applied towards the toe and the ankle area just to get that grip, as it's never going to be easy for him to get on that hanging Malcolm. That's a world record. That hanging pole. It's purely a game. It's purely a contest of strength, power, stability, mental patience, mental calmness, and then a lot of support from your teammates. So Sachin, right on your screen from the Vikram University, the third competitor. We have seen Hemant, we have seen Vishnesh, and now Sachin will be followed by Deepak, Rajveer, and then Kundan to sum up. Technical bench discussing up things right after the calculation is done. As things are going manual, it takes some time. Maybe technology could be introduced to this sport out as well. I've seen yoga in the university games in 2022, which took place in Bangalore, where things were manual with the technical team. But now, in the previous edition of the national game, which took place in Gujarat, Yogasana team was having a digital setup. So hoping that Malcolm will also adapt it, which will save some more time. Sachin Murugan sir is waiting for his chance for that pole, Malcolm. It's taking some more time, which also sometimes drops up the momentum of the contestant. If you're there for your performance, if you're standing there waiting for your chance for some long time, the volunteers, the players sitting in all together, exchanging their experiences. But these experiences are phenomenal from the University of Mumbai. The previous edition of Khelo India University game was good enough. And this is the next one. Prashant, do you see University of Mumbai getting any competition from any of the universities? जी हाँ, मुंबई विश्वविद्यालय पिछले वर्ष का चैंपियन रहा है, डिफेंडिंग चैंपियन की तरह ही प्रदर्शन किया है। हालांकि उनके जो चैंपियन खिलाड़ी हैं वो इस बार पंजाब विश्वविद्यालय से हैं। फिलहाल सचिन विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की तरफ से परफॉर्म करने के लिए पहुंच गए हैं पोल पर। पोल मलखम का ये इवेंट कुल मिलाकर 16 एलिमेंट्स को अपनाना है, गति के साथ संतुलन का इस्तेमाल, पूरे नियंत्रण के साथ। सचिन, उनके कोच से बात हो रही थी, मोहनलाल बांबरिया, उन्होंने बताया था कि हमारे जो टॉप के 4 प्लेयर हैं वो आपको अचंभित करेंगे। उनमें से एक नाम चकोर आसन की तरफ बढ़ते हुए, ये पैर जब सीधा होगा चकोर आसन कंप्लीट होगा। लीजिए, ये सबसे मुश्किल आसनों में से एक, सिंगल हैंड साथ में सपोर्ट, लगभग शीर्षासन की अवस्था, 1 हैंड मयूर आसन। कुल मिलाकर सचिन ने सब कुछ प्रस्तुत किया है। शाजापुर के रहने वाले हैं। ह्यूमन फ्लैग, ये थोड़ा सा टफ जरूर रहता है, लेकिन
सभी खिलाड़ी अपनाया करते हैं बजरंग पकड़। और फाइनली फिनिशिंग के लिए 90 सेकंड का समय पूरा होते दर्शकों के लिए देर नहीं लगती, लेकिन खिलाड़ियों के लिए अद्भुत। समरसॉल्ट की तरफ जाते हैं या कोई इजी फिनिशिंग करेंगे। सचिन गावले परफेक्ट समरसॉल्ट, लेकिन लैंडिंग में थोड़ा सा फंबल हुआ। तालियां उनको मिली हैं, लेकिन नंबर्स कितने मिलते हैं देखने वाली बात है। पोल पर जब वे थे अद्भुत थे, लेकिन जैसे ही लैंडिंग की फिनिश किया वहां पर थोड़ी सी कमी आई। तो सचिन ने अपना अटेम्प्ट पूरा किया। हाइलाइट्स में आप देखिए किस तरीके से सचिन ने स्टार्ट लिया। एक्टिविटीज कॉम्बिनेशन पोल पर मशक्कत करते हुए केवल 10 वर्ष की आयु में इन्होंने खेलना शुरू किया था मलखम्ब। पापा इनके पहलवानी किया करते थे, रेसलर थे, उन्होंने प्रेरित किया और आज उसका परिणाम है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बड़े मंच पर उनका बेटा काम कर रहा है। परिवहन विभाग में काम किया करते हैं इनके पापा। तो सचिन ने अपना अटेम्प्ट पूरा किया और अब हम बढ़ेंगे हैंगिंग मलखम्ब की तरफ। हैंगिंग मलखम्ब में सागर जाएंगे। सर, उसका नाम बता सकते हो मुझे? वो प्लेयर कौन है जो परफॉर्म कर रहा है, नाम बता सकते हो? ये वो बता देंगे, कोई भी बता देंगे, वो बता देंगे वो प्लेयर कौन है। वो प्लेयर कौन है? थोड़ा सा समय लेते हुए उत्कर्ष दरअसल आ रहे हैं। सागर इसके बाद रहेंगे अपने परफॉर्मेंस के लिए। कई बार जो क्रम रहा करता है परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों का, उसमें अंतर पैदा होता है, लेकिन ये जवाबदारी हम सब की बना करती है कि आप तक उस खिलाड़ी की पहचान पहुंचाएं, उस खिलाड़ी के परफॉर्मेंस को पहुंचाएं जिसने अपना जीवन समर्पित किया है। मलखम्ब वैसे भी आपसे बहुत सारी जवाबदारी, बहुत सारी मेहनत मांगा करता है। ये हैं उत्कर्ष पांडे, भोपाल के रहने वाले, पिता इनके प्राइवेट जॉब किया करते हैं। जब ये 6वीं क्लास में थे तब इन्होंने भोपाल में आयोजित होने वाले समर कैंप में हिस्सा लिया, मलखम्ब को पसंद किया, मलखम्ब से जुड़े और 6th क्लास से लगातार मलखम्ब खेल रहे हैं। शुरुआत अच्छी, सधी हुई शुरुआत, तेजी से थोड़ा सा परहेज किया है, संतुलन और कंट्रोल को, नियंत्रण को अपनाया है। अलग अलग आसन, अलग अलग एक्टिविटीज हैंगिंग मलखम्ब में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के उत्कर्ष पांडे इस समय परफॉर्म कर रहे हैं। भारत सिंह बांदेवाल उनके कोच, जो इस समय उनकी टीम के कोच भी हैं, वे मौजूद हैं इस अरीना में। ये ह्यूमन फ्लैग की तरफ जाते हुए हैंगिंग मलखम्ब पर, हैंगिंग पोल पर ये करना आसान नहीं होता। सिर्फ एक पंजे से ग्रिप बनाना, दूसरे से पोल को साधना असंभव सा काम, लेकिन असंभव से काम करना ही दरअसल एक जवाबदारी रहा करती है मलखम्ब के खिलाड़ियों की, और उससे बड़ी शिद्दत के साथ निभाया करते हैं। जिसने भी मलखम्ब को देखा है वो आश्चर्यचकित रहा है। केरला यूनिवर्सिटी डायरेक्टर एंड ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी बोर्ड में रसिका मैम यहाँ पर पधारी है, उनका सहर्ष दिल से स्वागत है। धन्यवाद मैडम। 60 सेकंड बीत चुके हैं, 90 सेकंड समाप्त होने जा रहे हैं। नटराज की तरफ बढ़े, नटराज के साथ अब लैंडिंग के लिए, जी हाँ, समय से निभाना पड़ता है, आपको समय के साथ सब कुछ करना होता है। तो उत्कर्ष पांडे ने उत्कर्ष प्रदर्शन किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ह्यूमन फ्लैग जिसे बोला जाता है, वो पोजीशन 90 डिग्री में साधने के लिए आपको पैर फैलाने होते हैं, क्योंकि एक पंजे से पकड़ बनानी है, पोल से दूसरे पंजे से बैलेंस साधना है। ये मुश्किलों भरा रहा करता है। हाईलाइट उत्कर्ष के बाद अब सागर पोल मलखम्ब पर बहुत जल्दी नेक्स्ट अटेम्प्ट। अगला खिलाड़ी सागर
सागर सिंह चौहान, रोप पर प्रदर्शन उनका बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं रहा था। यहां चकोर आसन की तरफ बढ़ते हुए लीजिए, ये आसन भी दोनों हथेलियों से पूरे शरीर को साधना, एक पैर फोल्ड करना गर्दन की तरफ, दूसरे पैर को समकक्ष रखना, मुश्किल चकोर आसन, उसके बाद एक के बाद एक मुश्किल आसन, और 16 एलिमेंट्स जो पोल मलखम में इस्तेमाल किए जाते हैं उनका कॉम्बिनेशन। सिर्फ ताकत नहीं, सिर्फ एक शारीरिक सामर्थ्य नहीं, बल्कि शरीर का लचीलापन बड़ा काम किया करता है। एक बार फिर ह्यूमन फ्लैग, दोनों हाथों से जितना काम लिया जाता है द्रोणासन, इस द्रोणासन के साथ आमतौर पर हाफ टर्न लैंडिंग, बढ़िया प्रदर्शन रहा। हालांकि थोड़े से निराश थे जब रोप मलखम पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पोल मलखम पर शानदार प्रदर्शन उनका। भोपाल विश्वविद्यालय, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के सागर सिंह चौहान का प्रदर्शन आप देख रहे हैं। ये फिनिशिंग के लिए जा रहे हैं, लैंडिंग के लिए जा रहे हैं। हाफ टर्न के साथ उन्होंने फिनिश किया। यह है हिमानी परब, उनके साथ टूर्नामेंट मैनेजर मिस्टर सुनील। कुल मिलाकर उत्कर्ष और सागर प्रणीत दरअसल अपना परफॉर्मेंस देकर गए हैं, और ये नामों का जो क्रम है ये कई बार विचलित किया करता है। आप अगर परफॉर्मेंस और रैंकिंग को जानना चाहेंगे तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस ग्राफ के माध्यम से। मुंबई विश्वविद्यालय सबसे ऊपर चल रहा है, डिफेंडिंग चैंपियन 119 अंकों के साथ। जो उनके पीछे हैं वो 8 अंक पीछे हैं, लगभग 9 अंक पीछे, 119.80 अंक हैं। पहली रैंक हासिल की है मुंबई विश्वविद्यालय ने। वेल्स यूनिवर्सिटी चेन्नई 111 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है, लगभग 9 अंकों का अंतर है, और ये 9 अंकों का अंतर बड़ा कहलाता है। संत गाडगे बाबा यूनिवर्सिटी अमरावती जो तीसरे स्थान पर चल रही है, कुल मिलाकर 104.20 अंक उनके हिस्से में है। मैंगलोर कर्नाटक की जो टीम है वो 103.25 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है। लेकिन कई बार आपके प्रयास, आपके एफर्ट्स रिजल्ट को सामने नहीं लेकर आ पाते हैं। रिजल्ट कई बार आपके एफर्ट्स के साथ जस्टिस नहीं कर पाता है, क्योंकि दिन विशेष और भाग्य विशेष आपके लिए काम करता है। लेकिन फिलहाल हमारी नजरें उन दर्शकों की तरफ भी जो मलखम से जुड़े हैं। आने वाले 2 दिन और प्रतियोगिता जारी रहेगी। ये दूसरे दिन का पहला चरण, जो दूसरा चरण रहेगा और महत्वपूर्ण रहेगा। हम आपको बता चुके हैं वर्ल्ड चैंपियन टीम के मेंबर दीपक शिंदे परफॉर्मेंस देंगे। इंडिविजुअल इवेंट के भी वो वर्ल्ड चैंपियन हैं, उनका परफॉर्मेंस यादगार रहेगा। इस बार पंजाब विश्वविद्यालय से वे खेल रहे हैं। 2 टीमें जो इस पहले सत्र में अपना परफॉर्मेंस दे रही हैं वो हैं बरकतुल्ला विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल से आता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चूंकि सुबह से आप हमारे प्रसारण से जुड़े हैं। वेल्स यूनिवर्सिटी चेन्नई की ये मैनेजर हैं, और वेल्स यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर मौजूद है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा कुछ विशेष नहीं हुआ तो मेडल की होड़ में निश्चित तौर पर वेल्स यूनिवर्सिटी शामिल है। हैंगिंग मलखम खिलाड़ी पहुंच गए हैं। हैंगिंग मलखम में
हैंगिंग मलखंब में चौथे स्थान पर तरुण दरअसल परफॉर्म कर रहे हैं। जो हमारे पास जो क्रम है वो उसके हिसाब से तरुण परफॉर्म कर रहे हैं चौथे क्रम पर। तरुण कुशवाहा, क्रम फिर परिवर्तित हुआ है। राहुल दरअसल परफॉर्म कर रहे हैं। ये हैं राहुल। दरअसल ये जो एक विशेष व्यवस्था है जिसको अपनाना भी होगा, जो जरूरी भी बनती है। राहुल पाल भोपाल के रहने वाले 24 वर्षीय जिन्होंने अपना परफॉर्मेंस पूरा किया हैंगिंग मलखंब पर। कुल मिलाकर 14 एलिमेंट्स अपनाने होते हैं। 90 सेकंड का समय रहा करता है। ये चैलेंजिंग कहीं ज़्यादा होता है, चुनौतीपूर्ण कहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि झूलते हुए पोल पर आपको न केवल पोल से सामंजस्य और संतुलन स्थापित करना होता है, बल्कि आपको समय और तमाम एलिमेंट्स को भी अपनाना होता है। राहुल ने अपना परफॉर्मेंस पूरा किया और अब अगर हमारे क्रम के हिसाब से देखेंगे, जो हमारे पास खिलाड़ियों के नाम की सूची आई है, उसके हिसाब से तरुण का परफॉर्मेंस आएगा सामने 6वें नंबर पर। लेकिन इससे पहले विक्रम विश्वविद्यालय जो पोल मलखंब पर है, वहां के खिलाड़ी की तरफ नजर दौड़ाएंगे। पोल मलखंब पर 4थे नंबर पर परेशान कर रहे हैं, लेकिन नाम गलत चले जाएंगे। इसको बस एक बार बता दो, क्या ये दीपक है? उस पे नहीं आता। आगे 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 ठीक है, वो क्या एक का ही कर रहे थे सर। थैंक यू। राजवीर आ रहे हैं। राजवीर जिन्होंने हैंगिंग मलखंब पर शानदार प्रदर्शन किया था। जवाबदारी उनकी बनती है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के लिए। जो काम उनके खिलाड़ी कर रहे हैं, अब राजवीर उनके मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करें। राजवीर सिंह उज्जैन के रहने वाले अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं। 25 वर्षीय, बेहतरीन समरसॉल्ट के साथ शुरुआत की है। ग्रिप अच्छा बना, पकड़ अच्छी बनी, कॉन्फिडेंस अच्छा मिला। बहुत तेजी के साथ बहुत जल्दी अपनी एक्टिविटीज की तरफ बढ़े हैं। पहले पकड़, स्टार्ट अच्छी, चकोर आसन की तरफ बढ़ते हुए सिंगल हैंड, ये संतुलन आसान नहीं होता। उसके बाद सरप्राइज ह्यूमन फ्लैग। वो सारी एक्टिविटीज, वो सारे एलिमेंट्स जो पोल मलखंब पर उसको और खूबसूरत बनाए करते हैं, वो अपनाने होते हैं। राजवीर सिंह वो करते हुए, 25 वर्षीय राजवीर सिंह 9 साल की उम्र से मलखंब खेल रहे हैं। यहां अद्भुत काम करते हुए, स्पीड देखिए आप, स्पीड के साथ कंट्रोल देखिए, एलिमेंट्स देखिए। सबसे बड़ी बात, इस खिलाड़ी के पास दर्शकों को अचंभित करने के पर्याप्त संसाधन हैं। और अब फाइनली लैंडिंग की तरफ बढ़ते हुए, थोड़ा सा अंतर, समरसॉल्ट, बढ़िया लैंडिंग, बहुत छोटा सा फंबल, लेकिन वो एक पहलू है, आसान नहीं होता। लेकिन बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस राजवीर सिंह की तरफ से। एक बार फिर देखिए हमारे हाईलाइट पैकेज में राजवीर सिंह ने किस तरीका का परफॉर्मेंस दिया है। जबरदस्त तरीके से स्पीड उनके साथ थी। सबसे जो
खास पहलू रहा करता है मलखंब में, स्पीड के साथ आपको अपने कंट्रोल को साबित करना होता है। तो कंट्रोल विद स्पीड आपने दिखाया है, ये बड़ी बात है। स्टेडल होल्ड, उसके बाद ऊपर गए, फाइनली समरसॉल्ट और वहां फिनिश किया। एक कदम चुके हैं, लेकिन एक कदम बहुत मैटर नहीं करता। मुंबई के सागर ने सबसे ज्यादा इंडिविजुअली अंक हासिल किए थे 8.85 के। राजवीर उसके आसपास हो सकते हैं, ये संभावना दिखाई देती है, क्योंकि उनके खेल में जो गति थी, उनके खेल में जो कंट्रोल था, वो अद्भुत था। ये हैं राजवीर सिंह, अनुभवी हैं, 25 वर्षीय, देश के लिए खेल चुके हैं, वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा रहे हैं। द्रोणाचार्य अवार्डी योगेश मालवी उनके कोच हैं। एक बार फिर उस रैंकिंग लिस्ट पर नजर दौड़ाते हैं, जहां से आपको मालूम होगा कि कौन सा विश्वविद्यालय किस तरीके का प्रदर्शन कर चुका है या कर रहा है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय 6वीं पोजीशन पर चल रहा है। विक्रम विश्वविद्यालय, आप देखिए जिनका मैं जिक्र कर रहा था, उन खिलाड़ियों ने क्या खेल दिखाया है। इस समय दूसरे स्थान पर विक्रम विश्वविद्यालय पहुंच गया है 111 अंकों के साथ, 111.95 अंक। आपको एक चीज और विशेष लगेगी कि अभी एक परफॉर्मेंस बाकी है, कुंदन का परफॉर्मेंस अभी बाकी है, और कुंदन के परफॉर्मेंस के बाद इस सूची में अंतर पैदा हो सकता है। केवल 8 अंक, 8.5 अंक पीछे हैं उज्जैन की टीम। पोल मलखंब में विक्रम विश्वविद्यालय की टीम अगर कुंदन के परफॉर्मेंस के सहारे मुंबई को पीछे छोड़ दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि ये अपने आप में अंकों के लिहाज से महसूस होता है कि 111 अंकों के साथ 119.80 अंकों के पीछे खड़ी है। विक्रम विश्वविद्यालय अवसर है, निश्चित तौर पर दूसरे स्थान पर आए हैं, लेकिन एक अभी खिलाड़ी का परफॉर्मेंस बाकी है। ये खिलाड़ी हैं कुंदन का छावा आपके स्क्रीन पर दिखाई देते हुए। क्या ये कुछ गजब करेंगे, विशेष करेंगे? लड़ाई 119.80 अंकों के खिलाफ है। 111 अंक ऑलरेडी उज्जैन के पास में हैं। तो एक परफॉर्मेंस क्या 111.95 स्कोर है इस समय उज्जैन का, और 119.80 स्कोर है मुंबई का। क्या कुंदन कछावा का परफॉर्मेंस मुंबई को पीछे छोड़ देगा और उज्जैन को बढ़त दिला देगा? उज्जैन के गोल्ड के लिए सिल्वर मेडल तो लगभग तय नजर आ रहा है विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन का, लेकिन गोल्ड मेडल के लिए कुंदन को बढ़िया परफॉर्मेंस देना होगा। कुंदन कछावा शाजापुर के रहने वाले, महज 19 वर्षीय, आयु कम जवाबदारी ज्यादा, बहुत बढ़िया समरसॉल्ट के साथ लगभग ऊपर के स्थान पर पहुंचे। पोल जो रहा करता है बिल्कुल मानवीय शरीर की तरह रहा करता है। ऊपर का हिस्सा हेड, बीच में गर्दन, उसके बाद धड़। लेकिन यहां देखिए कितनी तेजी के साथ बहुत जल्दी अपने अगले एलिमेंट्स की तरफ पहुंचते हैं। चकोर आसन, आप कॉम्बिनेशन देखेंगे तमाम आसन का, तमाम एलिमेंट्स का, और उसके साथ गति देखते हुए ये खुशियां हैं। विक्रम विश्वविद्यालय कोच खुश होंगे। मोहनलाल बांबरिया विश्वामित्र अवार्डी हैं, जो मध्य प्रदेश शासन की तरफ से सबसे बड़ा कोच को पुरस्कार दिया जाता है। इधर बहुत अच्छे तरीके से ह्यूमन फ्लैग, पूरा नियंत्रण, पूरा कंट्रोल, जानते हैं लक्ष्य उनका गोल्ड के लिए है। क्या यह संभव है? हालांकि 2 विश्वविद्यालय का परफॉर्मेंस आना बाकी है, लेकिन रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल कर सकता है विक्रम विश्वविद्यालय।
111.95 अंक हैं। लैंडिंग की तरफ बढ़ते हुए कुंदन कछावा, शाजापुर के रहने वाले, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कंटेंडर। ये रहे बैक समरसॉल्ट, बैक इन लैंडिंग। हालांकि थोड़ा जो चेहरे पर मायूसी दिखाई दी है वो उनके खुद के हौसले के लिए है। कभी भी कोई भी खिलाड़ी निश्चिंत नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता, यह दर्शाता है। लेकिन यह परफॉर्मेंस कुंदन का बहुत प्रभावी रहा है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। क्या मुंबई को अंकों के लिहाज से पीछा छोड़ने में कामयाब रहेंगे उज्जैन के खिलाड़ी, देखना होगा। 119.80 मुंबई, और कुंदन कछावा के प्रदर्शन से पहले उज्जैन का स्कोर था 111.95, यानी 8 से भी कम अंकों का अंतर है। क्या 8 अंक हासिल कर पाते हैं कुंदन कछावा? 8 से ज्यादा अंक हासिल कर लेते हैं तो मुंबई पीछे हो जाएगा और उज्जैन टॉप रैंकिंग पर पहुंच जाएगा। यह प्रदर्शन बताता है कि बहुत कुछ हासिल किया है इस खिलाड़ी ने। चेहरे की स्माइल, चेहरे की मुस्कुराहट, और ये फाइनल लैंडिंग, बैक समरसॉल्ट, खत्म किया परफॉर्मेंस। तो आज पहले सत्र के परफॉर्मेंस खत्म हुए हैं। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, लीजिए जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो सामने आया। डिफेंडिंग चैंपियन पीछे हुआ, टॉप रैंकिंग पर पहुंचा है उज्जैन का दल। जो परफॉर्मेंस रहा है, जो टॉप 5 कंटेंडर रहा करते हैं उनका परफॉर्मेंस इंक्लूड रहा करता है। जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया, राजवीर सिंह ने उम्मीद के अनुरूप परफॉर्मेंस दिया। 25.10 अंकों के साथ वे टॉप कंटेंडर साबित हुए। दीपक दूसरे स्थान पर रहे 23.75 के साथ, हालांकि अंक अलग अलग हैं। 24.30 के साथ कुंदन कछावा, जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिया और उज्जैन को पहले स्थान पर पहुंचा दिया है। तो रैंकिंग की पोजीशन के लिहाज से डिफेंडिंग चैंपियन को पीछे छोड़ दिया है उज्जैन ने। उज्जैन 120 अंकों से ज्यादा हासिल करने में कामयाब रहा है। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के खिलाड़ियों को बधाइयां। फिलहाल गोल्ड मेडल की दौड़ में विक्रम विश्वविद्यालय सबसे ऊपर है, डिफेंडिंग चैंपियन दूसरे स्थान पर है। ये रही रैंकिंग लिस्ट। विक्रम विश्वविद्यालय 120.70 अंकों के साथ पहले स्थान पर, पीछे छोड़ दिया है डिफेंडिंग चैंपियन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई को। 119.80 दूसरे स्थान पर डिफेंडिंग चैंपियन। वेल्स यूनिवर्सिटी चेन्नई तीसरे स्थान पर 111.00। सीधी सी बात है, ये टॉप 3 कंटेंडर मेडल की दौड़ में शामिल हैं, लेकिन 2 टीमों के परफॉर्मेंस सेकंड सेशन में आने बाकी हैं। लंच के बाद का खेल प्रारंभ होगा, तब ज्यादा आपको उत्साह दिखाई देगा, ज्यादा बेहतर मलखम दिखाई देगा। लेकिन अभी भोजन अवकाश, यह सत्र खत्म होने जा रहा है। दूसरे दिन का यह सत्र समाप्त होता है। हम आपसे उम्मीद करेंगे मलखम से जुड़े रहेंगे, आप हमारे प्रसारण से जुड़े रहेंगे। लेकिन अभी के लिए आपसे विदा चाहेंगे। लंच के बाद के मुकाबले में आपसे दोबारा जुड़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। Put your hands in the air.